Welcome back. In the previous class, we did the introductory part of the chapter 7 indices, in which we cover the laws of indices as well as we did the some questions of exercise 7a. So today we will start our next exercise, that is 7b. So we are starting from the first question, first part. It is given that 2 raised to power 2x plus 1, 2 raised to power 2x plus 1 is equals to 8. So in this exercise we are using the previous, that is laws of the indices, the formula we studied in the previous class, like a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. When it is given a raised to power m divided by a raised to power n, then we can write it as a raised to power m minus n. There are some rules we studied in the previous lecture. Now we are starting with, here it is given that 2 raised to power 2x plus 1 is equals to 8. Now we have to make the same basis on both the sides. To find, in the first part we have to find the value of x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. How we can find the value of x? First we make the base same. So 2 raised to power 2x plus 1 and we write it as 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 3. That means 2 into 2 into 2. Now on both sides the base is same. Suppose it is given that a raised to power x is equals to a raised to power y. When the base is same, then power should be equal. So that is 2x plus 1 is equals to 3. From here 2x is equals to 3 minus 1 and x is equals to 2 upon 2, that is 1. So from here the value of x is equals to 1. They are very easy question, we can easily sort it out. Now the next question, that is third part we are doing. Second you can do by yourself. Second part आपको खुद से करना है. Same चीज है, we are just making the same base. Now we are doing the third part. Third part, it is given that 3 raised to power 4x plus 1. 3 raised to power 4x plus 1 should be, it is equals to 27 raised to power x plus 1. 27 raised to power x plus 1. So here the base is same, here the base is 3. So we can make 27 as the base of 3. So we can write it as 3 raised to power 4 plus 1, 4x plus 1 and 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 raised to power 3 whole raised to power x plus 1. हमने प्रीवियस में एक रूल पढ़ा था, if a raised to power m whole raised to power n, तो उसको we can write it as a raised to power m into n. तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, that is 3 raised to power 4 plus 4x plus 1 is equals to 3 raised to power 3 into x plus 1. तो 3 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है x plus 1 के साथ. नाउ ऑन कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या हो गया बेस सेम हो गया, तो हम ऑन कंपेयरिंग, या आप लिख सकते हैं व्हेन द बेस इज सेम देन पावर शुड बी इक्वल. सो 4x plus 1 is equals to 3x plus 3. इस 3 की मल्टीप्लाई हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया. Then from here 4x minus 3x is equals to 3 minus 1. तो x is equals to 2. This is the answer. So first plus third part we can do it as like this. Now the next one is 49 raised to power x plus 4 7. So we are just making the base 7 on both the side. तो first question you can easily do. First and third part हमने करा दिया, बाकी के दो पार्ट आपको खुद से करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड फॉर x. x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें कुछ नहीं करना, वी आर मेकिंग द सेम बेस. वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड पार्ट, दैट इज रूट 2 raised to power. It is given that root 2 raised to power x plus 3 is equals to 16. Is equals to 16. Now, if the number is given like that, root x, so we can write it as x raised to power 1 upon 2. तो हम उसे क्या लिख सकते हैं x raised to power 1 upon 2. In the same way, हम इसको भी ऐसे ही करेंगे. Then we are making the same base. So 2 raised to power x plus 3
होल रेज टू पावर 1/2, क्योंकि रूट किस पे है, पूरे पे है, सो वी कैन राइट इट एज होल रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4. ओके, नाउ अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m n. तो इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाफ x प्लस 3, 2 रेज टू पावर 1/2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4. When base is same, then power is equal. Power should be equal. जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. सो फ्रॉम हेयर हाफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. नाउ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 and x is equals to 8 minus 3. So from here the value of x is equals to 5. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी. Now second का थर्ड पार्ट we are doing here because इसमें भी रूट की वैल्यूज दी हुई हैं. फर्स्ट एंड फोर्थ आपको खुद से करना है, सेकंड एंड थर्ड हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं. ओके, इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, √3/5. सेकंड थर्ड पार्ट, it is given that √3/5 raised to power x plus 1 is equals to 125/27. This is the question. Now we have to find the value of x. हमें क्या करना है, we need to find the value of x. हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है. सो हमें वही लॉज ऑफ इंडिसेस यूज करने हैं एंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे. सो इट विल बी रिटन एज, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 3 रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर x प्लस 1. And we are doing the factor of 125, so it should be written as 5 into 5 into 5, as well as 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3. Now we are using this rule, a raised to power m whole raised to power n. So उसको हम क्या लिख सकते हैं, a raised to power m into n. तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 1/2 is equals to 5 raised to power 3/3 raised to power 3. Now here the base is 3/5, here 5/3. So पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 whole raised to power x plus 1/2 is equals to 5/3 whole raised to power 3. How? Because a raised to power m upon b raised to power m. So we can write it as a/b whole raised to power m. इसको हम क्या लिख सकते थे, a/b whole raised to power m. In the same way इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 whole raised to power 3. So from here हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x plus 1/2 that is the power of 3/5 is equals to 3/5 whole raised to power -3. When we are doing the reciprocal of that, तो हम क्या करते हैं, पावर को भी माइनस कर देते हैं, साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो फ्रॉम हेयर बेस सेम हो गया, देन x plus 1/2 is equals to -3, x plus 1 is equals to -6 and x is equals to -7. This is the final answer for third part. थर्ड पार्ट में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज -7. फोर्थ पार्ट यू कैन इजिली डू बाय योरसेल्फ. सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट दिया हुआ है. तो यहाँ पे जहां पे हम पावर, जब हम रूट निकालते हैं, जैसे हमने अभी किया था, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2. सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, तो x की पावर 1/3 करेंगे सेकंड के फोर्थ पार्ट में. तो देन वी कैन इजिली सोल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट, 4 raised to power x minus 2. 4 raised to power x minus 2 is equals to, -2
माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें सोल्व करना है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो व्हाट शैल वी डू, अगेन वी आर डूइंग द सेम यूजिंग द लॉज ऑफ इंडेसेस। सो फ्रॉम हियर 4 रेज टू पावर x माइनस 2, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, देन इट विल बिकम 2 रेज टू पावर x प्लस 1। हियर द बेस इज 4 and 2, सो वी आर मेकिंग द सेम बेस। जब हम इसको सेम बेस बनाएंगे तो इट विल बी रिटन एज 2 स्क्वायर अपॉन होल रेज टू पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x प्लस 1। सो फ्रॉम हियर we are using a raised to power m whole raised to power n is equals to a raised to power m into n। ये फॉर्मूला तो आप रट लो, बेसिकली हर क्वेश्चन में लगना है। सो फ्रॉम हियर 2 raised to power 2 x minus 2 is equals to 2 raised to power x plus 1। so we can write on comparing, when the base is same then the power is equals, that means 2x minus 4 is equals to x plus 1। taking the like x on left hand side and the constant on the right hand side, 2x minus x is equals to 1 plus 4, then x is equals to 5। this is the value of x। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, we need to find the value of x। how we can do, first we are just using the laws of indices। पहले हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन बेस सेम करना है, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ इन द सेम वे हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, बट इसमें कुछ थोड़ा सा रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं ऑन द बोर्ड। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट, इट इज 3 रेज टू पावर x स्क्वायर, 3 रेज टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, रेशियो 3 raised to power x square ratio 3 raised to power x is equals to 9 ratio 1। दिस इज द क्वेश्चन। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें घबराना नहीं है, वी जस्ट बेसिक हमें यूज करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power x square अपॉन 3 raised to power x is equals to 9 अपॉन 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 9 अपॉन 1। सो हियर we are using a raised to power n upon a raised to power n, we can write it as a raised to power n minus n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power x square minus x is equals to, it should be written as 3 raised to power 2। now when the base is same, power should be equal, so we can write it as x square minus x is equals to 2। now we are taking 2 to that side, left hand side, so it will become x square minus x minus 2 is equals to 0। now this is a basic quadratic equation। इसको हम सोल्व कर सकते हैं by the factorization method। factorization method सबको पता है, इसके फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ठीक। तो that will become x square minus 2x minus प्लस x minus 2 is equals to 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 minus 1। तो 2 minus 1 यानी माइनस साइन है, minus 2x plus x minus 2 is equals to 0। now we are taking x as a common from the first two term, x minus 2 plus 1 as a common, x minus 2 is equals to 0। so इसको हम क्या लिख सकते हैं, that is x plus 1 into x minus 2 is equals to 0। ये हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन। सो नाउ x plus 1 is equals to 0 or x minus 2 is equals to 0। so from here the value of x is equals to minus 1 and x is equals to 2। these are the two values। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू निकलेगी, दैट इज x is equals to minus 1 and x is equals to 2। so there is no need to afraid from the question, you just using your basic skills, if you know the introductory part then you can easily solve the questions। now नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का सिर्फ एक ही पार्ट करेंगे, सेकंड आपको खुद से करना है, दैट इज 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x, इट इज गिवन प्लस 4 इंटू 2 रेज टू पावर
2x plus 1, 2 raised to power x plus 1 equals to 1 plus 2 raised to power x. This is basically the question. Here the question is we need to find the value of x. The question, it is given that 8 into 2 raised to power 2x into 4 into 2 raised to power x plus 1 equals to 1 plus 2 raised to power x. Okay. Now here it is solution हम कैसे करेंगे? 8 into 2 raised to power 2x, इसको हमने as it is लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 2 raised to power 2x into 2. When it is given that 2 raised to power m into 2 raised to power n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power m plus n. तो हमें m plus n दिया है, that is x plus 1 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power x into 2 raised to power 1 equals to 1 plus 2 raised to power x. Now that is 8 into 2 raised to power 2x plus 4 to the 8 into 2 raised to power x. We are taking minus 2 raised to power x is equals to 1. Okay, 1 को भी हम इसी साइड ले आते हैं, that will minus 1 is equals to 0. Now अब हम क्या करते हैं? That is 8 2 raised to power x minus let कर लेते हैं, let 2 raised to power x is equals to a मान लिया. 2 raised to power x को हमने क्या मान लिया? a माना. Then it will become 8a square. Here it is given as 2 raised to power 2x. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power x into 2 raised to power x. तो x plus s that will become 2 raised to power 2x, जैसे हमने ऊपर किया था. तो that will become 8a square plus 8a minus a minus 1 is equals to 0. So from here 8a square plus 7a minus 1 is equals to 0. Now from here how we can, this is a quadratic equation, then we need to find the value of a. a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 8 के ऐसे फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करोगे 8 into 1, तो 8 minus 1 that is 7. So from here 8a square plus 8a minus 1a, we can write it as a minus 1 is equals to 0. Now we are taking 8a as a common, so a plus 1 minus 1 as a common, a plus 1. This is, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. 8a minus 1, 8a minus 1 is in the first bracket and a plus 1 in the second bracket. a plus 1 हमें क्या करना है? सेकेंड ब्रैकेट में equals to 0. Now दोनों तो हम क्या कर सकते हैं? Either 8a minus 1 equals to 0 or a plus 1 equals to 0. So from here a is equals to 1 by 8 and a is equals to minus 1. तो a की हमारे पास दो वैल्यू आई है, a equals to 1 by 8 and a equals to minus 1. अब हमें क्या करना है? हमने माना था 2 raised to power x is equals to a. We need to find the value of x. हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमारे पास a की वैल्यू आई है. तो अगर हम a को लेते हैं 1 by 8, a को अगर हम 1 by 8 लिखते हैं तो 2 raised to power x is equals to 1 by 8, और इसको लिख सकते हैं 2 raised to power minus 3. 2 raised to power minus 3 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 8 को लिखेंगे 2 raised to power 3, ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी. नाउ द बेस इज सेम, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू minus 3. एक वैल्यू तो x की क्या आ जाएगी? minus 3. अगर हम a को मानते हैं minus 1, 2 raised to power x is equals to minus 1, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो फ्रॉम हियर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसमें 2 raised to power x minus 1 के इक्वल आए. सो दिस इज द आवर फाइनल आंसर. x is equals to minus 3. Now second part you have to do by yourself. Now we are doing the question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम हमें लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ फॉर्मूले ही यूज करने हैं. क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है. वी कैन इजिली सोल्व इट आउट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n. हमें क्या करना है? m और n की वैल्यू निकालनी है व्हेन 4 raised to power 2m 4 raised to power 2m
इक्वल्स टू क्यूब रूट 16 होल रेज टू पावर -6 अपॉन n. It is given -6 upon n equals to cube square root 8 whole square. Okay. Now, from here we have to find the value of m and n. m और n को वैल्यू फाइंड करनी है. If it is given that a equals to b equals to c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a is equals to c and b is also equals to c. So in the same way we are doing the question. That is 4 raised to power 2m equals to square root of 8 square. ठीक है. So from here we can find the value of m. तो इसकी m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. How we can? We are just solving. That is 2 square whole raised to power 2m equals to, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 का क्यूब होल का स्क्वायर. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 3. So 2 raised to power 4m पावर को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 2 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2. इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 raised to power 3 upon 2 into 2 whole raised to power 2. So we can write it as 2 raised to power 4m equals to 2 raised to power 3 by 2 into 2. 2 is cancelled out with 2. Now it will become 2 raised to power 4m equals to 2 raised to power 3. When the base is same, then powers would be equal. So 4m equals to 3 and m equals to 3 by 4. This is the value of m. Now n निकालेंगे. n भी हमें ऐसे ही निकालना है. Here it is given that cube root 16 whole raised to power -6 upon n equals to square root of 8 whole raised to power 2. First we can write it as 2 raised to power 4 cube root whole raised to power -6 upon n equals to 2 raised to power 3 square root whole raised to power 2. Now यहाँ पे देखो क्यूब रूट हटाना है तो 4 upon 3 पावर हो जाएगी. That is 4 upon 3 whole raised to power -6 upon 9 equals to 2 raised to power 3 by 2. यहाँ पे 3 into 1 by 2 that will become 3 by 2 whole raised to power 2. Now मल्टीप्लाई करेंगे पावर को a raised to power m whole raised to power n. तो a raised to power m into n, that is 2 raised to power 4 by 3 into -6 upon n equals to 2 raised to power 3 upon 2 into 2. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 raised to power 3 upon 2 into 2. 2 is cancelled out with 2. 3 2 जा 6. So it will become 2 raised to power -8 upon n equals to 2 raised to power 3. When the base is same, then power should be equal. -8 upon n equals to 3. This implies that n is equals to -3 upon, n is equals to -8 upon 3. n को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे that will become 3n. 3 को इस साइड लेके आएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 upon 3. This is the value of n and this is the value of m. ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है. Now question number 6 you can easily do by yourself. दो इक्वेशन बनेगी, x and y को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, then you can find the value of x and y. Now we are doing the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक पार्ट करेंगे, दूसरा ऐसा ही है उसके जैसा, तो आप इजीली कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. ऐसा क्वेश्चन हमने 7th ए एक्सरसाइज में भी किया था. x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c इंटू x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c माइनस a इंटू x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर c प्लस a माइनस. दिस इज गिवन इक्वल्स टू 1. सो हमें क्या करना है? प्रूव करना है. दैट मीन्स वी हैव टू सोल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी नीड टू फाइंड गेट द राइट हैंड साइड. देन द क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड.
नाउ सॉल्यूशन, इफ यू आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हियर इट इज गिवन x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b। तो जब हमें क्वेश्चन में पावर डिवाइड में दी हो व्हेन द बेस इज सेम, सो वी कैन राइट इट एज x रेज टू पावर a माइनस b होल रेज टू पावर a प्लस b माइनस c। तो इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। इनटू x रेज टू पावर b प्लस c, इस सेम वे में हमें इनकी दोनों की पावर क्या होगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी b माइनस c इंटू b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर c माइनस ए होल c प्लस a माइनस b। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। सो फ्रॉम हियर x रेज टू पावर a की मल्टीप्लाई a प्लस b माइनस c में किया तो दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी की माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी। दिस इज फर्स्ट पार्ट। एक्स को इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। हेयर भी हमारे पास क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, यहीं पे लिख ले रहे हैं, इसी के साथ कंटिन्यूएशन में है, मल्टीप्लाई में उस पार्ट को सोल्व करेंगे, दैट इज सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो तीनों के बेस क्या है, सेम है, और तीनों पावर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो पावर क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कौन सी पावर, इसकी पावर ऐड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इसके बाद इस पार्ट को प्लस करेंगे, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। नाउ दिस इज एक्स रेज टू पावर दैट। फ्रॉम हियर इट इज प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज कैंसिल आउट प्लस ए बी माइनस ए बी इज कैंसिल आउट प्लस माइनस ए सी प्लस ए सी इज कैंसिल आउट माइनस के बी ए, दैट मीन्स माइनस ए बी और बी ए प्लस ए बी। सो यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम एक्स रेज टू पावर 0। और वी ऑलरेडी नो दैट किसी की भी पावर 0 हो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट हमें दिया होगा x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b, इसको सोल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर a माइनस बी होल रेज टू पावर a प्लस b माइनस c। दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करोगे, देन एड अप करने के बाद लॉज ऑफ इंडिसेस लगाने के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में हमें कुछ प्रूविंग पार्ट दिया है, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। When it is given that a raised to power x is equals to b, हमें क्या दिया, a raised to power x is equals to b and b raised to power y equals to c, b raised to power y equals to c as well as c raised to power z equals to a. This is the question. A raised to power x is equals to b and b raised to power y equals to c and c raised to power z equals to a. हमें प्रूव करना है x into y into z equals to 1. So from here सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लो। c equals to a raised to power 1 upon z। c को हम क्या लिख सकते हैं, a raised to power 1 upon z from here। ठीक, लिख सकते हैं। पावर को इस साइड लेके जाएंगे तो 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाएंगी, दैट इज। नाउ इन द सेम वे
b को हम क्या लिख सकते हैं, c रेज टू पावर 1 अपॉन y। c को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी b को हम लिख सकते हैं c रेज टू पावर 1 अपॉन y, एंड a को भी इन द सेम वे हम लिख सकते हैं b रेज टू पावर 1 अपॉन x। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b रेज टू पावर 1 अपॉन x। अब हम इसी को लेके चलेंगे, अगर हम b की वैल्यू रखें, b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, a इक्वल्स टू b की प्लेस में b इक्वल्स टू c रेज टू पावर 1 अपॉन y। सो इन प्लेस ऑफ b वी आर पुटिंग c रेज टू पावर 1 अपॉन y होल रेज टू पावर 1 अपॉन x। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम c रेज टू पावर 1 अपॉन yx। ये आ गया। अब a इक्वल्स टू c रेज टू पावर 1 अपॉन yx। इन द सेम वे c इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 अपॉन z। तो इन प्लेस ऑफ c हम क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर 1 अपॉन z होल रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम a रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स वाई z। नाउ द बेस इज सेम, देन पावर शुड बी इक्वल, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स वाई z इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई z इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया हमारे पास, हैंस प्रूफ। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेम वे हमें 9th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही करना है। नाउ वी आर डूइंग द 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9th आपको खुद से करना है, हिंट भी दिया हुआ है, यू कैन इजिली सॉल्व इट आउट। बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा अभी ये 8 किया है वैसा ही है। इट इज गिवन दैट 10th में 5 रेज टू पावर माइनस p, 5 रेज टू पावर माइनस p इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर माइनस q, 4 रेज टू पावर माइनस q इक्वल्स टू 20 रेज टू पावर r। अब हमें प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट व्हेन 5 रेज टू पावर माइनस p इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर माइनस q इक्वल्स टू 20 रेज टू पावर r, देन it should be equals to 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r equals to 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो गिवन स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे, वी कैन इजिली फाइंड आउट द, वी कैन प्रूव द सॉल्यूशन। सो फ्रॉम हियर 5 रेज टू पावर माइनस p इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर माइनस q, 4 रेज टू पावर माइनस q इक्वल्स टू 20 रेज टू पावर r। इसको हमने क्या मान लिया, दैट शुड बी इक्वल्स टू k। अगर हम k के इक्वल मानते हैं तो 5 रेज टू पावर माइनस p इक्वल्स टू k, 4 रेज टू पावर माइनस q इक्वल्स टू k एंड 20 रेज टू पावर r, दैट शुड बी आल्सो इक्वल्स टू k। सो फ्रॉम हियर p इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1 अपॉन माइनस p, पावर को इस साइड ले जाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन p। तो 4 इक्वल्स टू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन q एज वेल एज 20 इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1 अपॉन r। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, k की टर्म्स में लेके। नाउ 20 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हमारे पास आया 20 इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1 बाय r। तो वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 4 इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1 बाय r। सो इन प्लेस ऑफ 5 वी आर पुटिंग द वैल्यू 5 इक्वल्स टू, यहाँ से हम वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ से उठा के इस यहाँ पे, ठीक 4 के प्लेस पे ये वैल्यू रखी, 5 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। देन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन p इंटू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन q इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1 अपॉन r। When the base is same and it is given in the multiplication, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन p प्लस माइनस 1 अपॉन q is equals to k रेज टू पावर 1 अपॉन r। When the base is same, then the power is equal. That means minus 1 upon p minus 1 upon q is equals to 1 upon r. When we are taking minus 1 upon p and minus 1 upon q to that side, that will become 1 upon r plus 1 upon p plus 1 upon q is equals to 0. यही तो हमें प्रूव करना था। We have to prove that
hence the part is true. So easily you can find out. In the second question हमें 11th में क्या करना है, we need to find the value of x and m and n. So m plus n raised to power minus 1 दिया है, तो उसको हम लिखेंगे 1 upon m plus n into m raised to power minus 1, उसको हम लिख लेंगे 1 upon m plus 1 upon n. तो वहां से हम इजिली बेसिक हम बता देते हैं 11th क्वेश्चन में. 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज m प्लस n की पावर माइनस 1, तो उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन m प्लस n. इनटू में दिया है 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n, यानी कि m की पावर माइनस 1 प्लस 1 m की पावर माइनस 1. जब यहाँ से आप इसको ओपन करोगे m प्लस n, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा m प्लस n अपॉन mn. सो दैट विल कैंसिल आउट विद दिस, सो इट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन mn. ये कुछ इक्वल दिया हुआ है उसने 1 अपॉन mn. हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो वो इक्वल्स है m रेज टू पावर x 1 अपॉन mn इक्वल्स टू m रेज टू पावर x n रेज टू पावर y. m रेज टू पावर माइनस 1 n रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू m रेज टू पावर x n रेज टू पावर y. कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. अब आप इजिली इसको सोल्व कर सकते हो. आगे का यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें सेम इजी सा क्वेश्चन है 12 तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट आई विल सोल्व इट. 5 रेज टू पावर x प्लस 1, 5 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 रेज टू पावर x माइनस 2. इट इज गिवन, हमें वैल्यू निकालनी है 3 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस x. इसकी हमें कैलकुलेट करना है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस x. तो कैसे करेंगे, दिस इज द गिवन पार्ट. सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो. x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5 रेज टू पावर x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 25 को, दैट इज x माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी. 5 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2 into x minus 2. When the base is same, then the power is equal. That means x plus 1 equals to 2x minus 4. मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो x को इस साइड ले आओ, 4 को इस साइड ले आओ. दैट मीन्स 2x minus x is equals to 1 plus 4, x is equals to 5. यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. अब इसमें पुट कर दो 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 5. ये तो दिया है हमने. In place of x, we are putting the value that is 5. 3 raised to power 5 minus 3, that is 3 raised to power 2 into 2 raised to power minus 3. इसको लिख सकते हैं 9 और इसको लिख सकते हैं upon 2 raised to power 3, that is 8. ये इसकी वैल्यू है. The answer is 9 upon 8. Okay, here there is a mistake. 3 minus 5, that is minus 2. Minus 2, so it will become 9 upon 4. This is the answer. Now, question number 13. 13 question भी कुछ ऐसा ही है. We can easily find out. If it is given that if 4 raised to power x plus 3, that is question number 13. 4 raised to power x plus 3 is equals to 112 plus 8 into 4 raised to power x plus 8 into 4 raised to power x. फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड करना है 18x होल की पावर 3. दिस इज द क्वेश्चन. 4x plus 3, 4 raised to power x plus 3 equals to 112 plus 8 into 4 raised to power x. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a raised to power m plus n को क्या लिख सकते हैं, a raised to power m into a raised to power n. ये हमने पहले पढ़ा है, तो इसको लिख लो 4 raised to power x into 4 raised to power 3 equals to 112 plus 8 into 4 raised to power x. यहाँ पे देखो 4 raised to power x, that is 4 raised to power 3
is equals to 64 into 4 raised to power x is equals to 112 plus 8 into 4 raised to power x. Now let कर लो कि 4 raised to power x को हमने a मान लिया, so it will become 64a equals to 112 plus 8a. Now 8a को इस साइड लेके आएंगे तो 64a minus 8a equals to 112. 64 में से 8 माइनस करोगे दैट इज 56a equals to 112. a की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 upon 56 दैट इज 6 to the 12 5 to the 10. तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2. a 2 आ गया. देन हमने क्या किया था 4 raised to power x equals to a. तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 raised to power x is equals to a की वैल्यू क्या है 2. Now 2 raised to power 2x is equals to 2 raised to power 1. तो 2x is equals to 1, x is equals to 1 by 2. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 by 2. अब हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई तो हम इसी को पुट करेंगे किसमें, क्या फाइंड करना है हमें 18x होल रेज़्ड टू पावर 3x. दैट मीन्स 18 इंटू 1 by 2 होल की पावर 3 इंटू 1 by 2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9. 9 की पावर 3 by 2. 9 की पावर 3 upon 2. ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3. 3 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2. तो 3 की पावर 3 दैट इज 27. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 27 के इक्वल. सो दिस इज अबाउट 7 क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 7b. यहाँ से हमने फाइंड कर. अब 14 पार्ट में इजी सा पार्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट. अगर नहीं होते हैं देन यू कैन मेंशन, आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास. 7c आप थोड़ा कोशिश करना, अगर नहीं होगा देन यू विल सॉल्व इन द डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.